प्यारे दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों की सेवा के लिए एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट रहेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये क्यों हैपन होता है, इसकी कंडीशन क्या क्या हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या है कि जब हमारी कोई इंसिडेंट रेज किसी सेपरेटिंग मीडियम, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है उस सरफेस, सेपरेटिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो अगर वो मीडियम को चेंज ना करे और सेम मीडियम में रिटर्न हो जाए तो ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन का होता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा जो ये टीआईआर फिनोमिना है ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये हमारा प्योर रिफ्लेक्शन नहीं है। मैं ये डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूं कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, एक्चुअल में ये रिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है। और कंडीशन कैसी है, तो पहले हम सिंपल सी बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा दो मीडियम को सेपरेट करने की एक लाइन है। सपोज किया ये एक्स डैश है, दिस इज रेयरर मीडियम और दिस इज डेंसर मीडियम। देखिए पहले इसकी समझ बनाइए कि ये है क्या। ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम लाइट रेयरर मीडियम से फॉल करें, ये इंसिडेंट रेज, ये एंगल आई, we know very well incident rays coming from rarer to denser medium, it bend toward the normal. In this direction it bend. If we increase or decrease the incident angle, then this light never come into the same medium, rarer medium. So when light goes from rarer to denser, it is impossible to return into the same medium. So we can say that reflection phenomena never possible when light goes from rarer to denser. In opposite case, we understand in this way, this is the separating surface and this is denser and this is rarer medium. Light coming from denser to rarer medium, we know very well this is the normal n dash. If there is no change in medium, this light goes to the same path. This is incident rays and this is the actual path of this rays. But we know very well that when light goes from denser to rarer medium, it move away or it bend away from the normal. It bend away from the normal in this way. It means that this angle I and this angle is R. I and R both are correlated to each other, mean angle of refraction must be depend on the angle of incident. As we increase the value of incident angle, then this angle increases. As I increases, then R also increases. Further, we increase the angle of I from here to here, this light come into the same medium. So here our basic concept is that if light goes from rarer to denser, TIR never possible. But if light goes from denser to rarer, due to condition that light change its path away from the normal and it move away from this normal and reach to the same medium. And if incident rays having a definite incident angle at which this return to the same denser medium, and light incoming light in denser and outgoing light also in denser, this is the reflection phenomena. So I am saying that the main or the first or initial condition of TIR, condition of TIR. First condition is light should be
incident from denser to rarer medium. Rarer medium. This is the first condition कि light source must be lie into the denser medium. Mean light goes from denser to rarer medium. It is the condition. Light should be incident from denser to rarer medium. That is the first condition for TIR. And second condition is angle of incidence. Angle of incidence. Angle of incidence must be greater than critical angle. Critical angle. Here our main confusion is that what is critical angle? What is critical angle? I explain here. Let us consider this is medium first. Medium first having refractive index n1, and this is medium second having refractive index n2, or condition is n2 greater than n1. It means that lower medium is denser than the upper medium, and x dash b interface or a imaginary surface that separate these two media. Here is the light source, incoming source. If light fall normally, then it comes out without deviation. Light normally fall on this interface without deviation, cross this medium and cross these boundaries. But if we fall the incident rays on this surface at any angle, this is the light source. Light start from here and fall on this. We draw a normal at this point as like this. This angle is incident angle. This is denser medium. This is rarer medium. Light goes from denser to rare, then light change its path, but it bend away from the normal. So light goes in this direction as like this, or this angle is R. This angle is R, refracting angle. We know very well, as we increase the angle of incidence, as we increase the angle of I or angle of incidence, their corresponding refraction angle also increases because light goes from denser to rarer. So we slightly increase the angle of refraction, angle of incidence as like this. This is the, again we draw a normal at this point. This is the angle of incidence, have the value as compared, have the greater value as compared to initial. As we increase the value of incident angle, then angle of R also increases, and a stage reached where this refracted rays goes parallel to interface as like this. Mean we can say that angle R is equal to 90. Because why R is 90? Because I is increases, then this light change their path and move away from the normal, and a condition reached where this incident refracted rays became parallel to this interface. This condition or the angle of this is called critical angle. Here I explain that what will be the critical angle. Critical angle ICs. It is the angle of incidence in denser medium. It is the angle of, it is the angle of incidence angle. Incidence angle in denser medium. In denser medium, it is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction
angle of refraction in rarer medium, in rarer medium became 90 डिग्री। यानी क्रिटिकल एंगल की अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप बताएंगे कि क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, इट इज नेसेसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड इनटू द डेंसर मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म्ड इनटू द रेयर मीडियम। सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल कंडीशन। सो दिस इज द जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा कि टीआईआर है क्या। टीआईआर एक्चुअल में एक फिनोमिना है। इफ द लाइट ट्रांसमिटेड इन डेंसर मीडियम is incident at greater angle than the critical angle on the separating surface of the rarer medium, then light reflected into same medium। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि डेंसर मीडियम से लाइट को ट्रांसमिट कराना, ट्रांसमिट का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना है, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन इज नथिंग, इट इज द फिनोमिना टू मूव लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एंड लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इन दिस केस। But if angle of incidence in greater than the critical angle, then this light rebound into or return into the same denser medium. And when light come back into same medium, this phenomena is known as the reflection. And here is not a proper reflection. Here is the conditional reflection. So it is called the TIR, total internal reflection. If we increase the angle of incidence, then the critical angle as like this. We increase the angle of incidence, we draw the normal as like this. Here we draw the normal as like this is the normal. Angle is greater than critical angle, then light never pass to the second medium, it return to the same medium as like this. This phenomena is TIR, light return to same medium. But condition is, these are the two conditions. First condition is light should be incident from denser to rarer medium. It means that light goes from denser to rarer medium. First condition is that. Second condition, angle of incidence must be greater than the critical angle in denser medium. In denser मीडियम, ये डेंसर मीडियम की। और अब यही हमने एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकेम 90। दिस इज द एंगल 90 डिग्री एंड दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज द critical angle. If angle of incidence increase or become greater than the critical angle, then light return to same medium and from the interface. Interface mean it is the surface that separate two medium, and this phenomena is known as the total internal reflection. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सकें। तो ये हमारी कंडीशन थी टीआईआर की। अब हमने जो बात इसमें क्रिटिकल एंगल और जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन बनाएंगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे अब हम इनके रिलेशन की। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं कि टीआईआर क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टीआईआर की कंडीशन क्या है, ये एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड कंडीशन ये पूछ सकता है क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कीजिए। और फोर्थ कंडीशन है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल IC एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। इसके बीच में रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां एक्चुअल की घटना देखिए आप, एक्चुअल की घटना यहां क्या हुई है कि ये हमारा एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। हम घटना तो रिफ्रैक्शन की पढ़ रहे थे ना। जब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन पढ़ी हमने, तो एक्चुअल में क्या हुआ, लाइट गोज फ्रॉम रेयरर डेंसर टू रेयरर मीडियम, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है तो क्रिटिकल कंडीशन पे बाय यूजिंग स्नेल लॉ, बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ का मतलब होता है स्नेल लॉ। हम इसका यूज करेंगे। स्नेल लॉ क्या कहता था, हमने स्नेल लॉ की कंडीशन जब पिछले टॉपिक में पढ़ी तो मैंने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल इन वन मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखिए हम इधर की बात करेंगे पहले। इधर हमने डेंसर मीडियम लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, n2 इनटू साइन ऑफ, इसमें हमारे एंगल कौन बने इस मीडियम में, इंसिडेंट एंगल बने साइन आई, किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा मीडियम हमारा कौन सा है, रेयरर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 इनटू साइन ऑफ, उसमें जो एंगल बने हैं वो कौन से हैं, r। ये हमारा स्नेल लॉ होता एक्चुअल में। एक्चुअल में स्नेल लॉ ने क्या बात कही थी, स्नेल लॉ ने बात कही थी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of that medium and sine of angle formed in that medium is always constant। तो ये देखिए हमने एक मीडियम लिया ये वाला डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इनटू इसमें जो एंगल बना साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इक्वल टू सेकंड मीडियम हमारा कौन सा हुआ, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 इनटू साइन ऑफ, इसमें जो एंगल बना वो r बना है। अब हम इस फॉर्मूले में कंडीशन किसकी लगाएंगे, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या कहता है कि I इज इक्वल टू IC है, देन R इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखिए, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डेंसर मीडियम में, जब रेयरर मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री बनता हो। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्या बन जाएगा ये n2 इंटू साइन IC, आई को रिप्लेस किया IC से, n1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया n2 इंटू साइन ऑफ IC इज इक्वल टू n1, n1 को इसके नीचे ले आओ, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, साइन ऑफ IC। और ये क्या है, n2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 इसका है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लिखते हैं n21 या 1,2 भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ IC। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है 1 अपॉन साइन IC। ये हमारा रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। ये हमारा रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। हम आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसका एक न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, उस न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप पहले, ताकि आप नोट्स बना सकें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर इट क्रिटिकल एंगल इन द एयर थ्रू द मीडियम इज 30 डिग्री। क्या कहता है ये, जैसे ये हमारा एक मीडियम दिया हुआ, इधर कोई भी, इधर एयर दे रखी है, यहां से क्रिटिकल एंगल जो इसका बना है वो IC की वैल्यू है वो ये है, और यहाँ R इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। तो हमें ये एंगल दे रखा क्रिटिकल, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पेपर में आ जाए तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं
कि आईसी दे रखा हमें 30 डिग्री और n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन आईसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। और सब जानते हैं कि 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 अपॉन 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2 इफ क्रिटिकल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 30 डिग्री। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है पेपर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे तो क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन जो फिनोमिना हम देखते हैं टीआईआर का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो मिरेज फॉर्मेशन है। जो ये मिराज बनती है आपकी, मिराज फॉर्मेशन क्या होता है इसकी फिनोमिना समझिए पहले कि जनरली ये ओक्यूर होती है डेजर्ट फिनोमिना, जो हमारा एरिया होता है डेजर्ट का, रेगिस्तानी एरिया जिसको बोलते हैं डेजर्ट रीजन में ये। और कब होती है ये समर में होती है जब हॉट डे हो, यानी गर्मी के दिनों में डेजर्ट एरिया में हमें ऐसे लगता है कि जब हम दूर से देखते हैं, सामान्य रूप से कई बार हम बस वगैरह में भी हम ट्रेवलिंग करते हैं तो उस समय भी देखा हो कि सामने रोड पे ऐसा लगता है जैसे पानी गिरा हुआ है। जब हम नजदीक जाते हैं उसके तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब इल्यूजन है, एक्चुअली नहीं है। ये एक इल्यूजन इफेक्ट होता है। तो क्या कहता है कि जो मिराज फॉर्मेशन है, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच ऑक्यूर यूजुअली इन डेजर्ट ऑन हॉट समर डे। इट इज बेस्ड ऑन टीआईआर फिनोमिना। जो ये किसका फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। इसमें क्या होता है, ट्री अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड एज इफ ट्री इज ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड ऑफ वाटर। जैसे ये हमारा एक पेड़ मान लीजिए, हम इसको एक ट्री है ये, हमें जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पानी के किनारे खड़ा हुआ है, हमारा जो तालाब के किनारे है, और इसकी परछाई नीचे दिखती है जबकि वहां पानी होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो समर डे जो होते हैं हमारे, समर डे में क्या होगा, हॉट डे है, हॉट डे की वजह से जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी हमारी, हीटेड हो जाएगी। एयर क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी। और जब एयर गर्म हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये फैलती है और अपलिफ्ट होती है, ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो जो हमारा सरफेस होता है, ये सरफेस है अर्थ का, सरफेस है, यहाँ की एयर है वो गर्म होके फैल जाएगी। और जब गर्म होके फैलेगी तो इसकी डेंसिटी है वो लो हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, वो कम हो जाएंगे क्योंकि ये फैलेगी। और इसके विद रिस्पेक्ट टू जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो कोल्ड एयर मिलेगी, तो वहां डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी, यानी अपसाइड में जाने पर डेंसिटी राइज होती है और नीचे की ओर जाने पर डेंसिटी कम होगी। तो इसका स्वाभाविक सा मीनिंग हुआ, जहां डेंसिटी कम है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा एयर का, और ऊपर वाले एरिया में कोल्ड एयर होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ ऊपर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एयर का, और सरफेस के क्लोज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जब लाइट इससे आ रही है तो क्या होगी, कोल्ड से हॉट एयर की तरफ आई, यानी डेंसर से रेयर की तरफ आई, तो धीरे धीरे क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हटते हटते, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये एयर दूर होते 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 इतनी दूर हो जाती है कि इसकी डायरेक्शन इस तरीके की हमें लगती है। और जब हम खड़े होके देखते हैं, हम स्ट्रेट देखते हैं, हम जब स्ट्रेट देखेंगे इसको इस डायरेक्शन में यहाँ, तो हमें ये जो रेज एक्चुअल में तो इस पॉइंट से आई थी, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि यहां से आ रही है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन यहां बनेगी। और जबकि नीचे तो कुछ है नहीं, ये तो हमारी क्या है, जमीन है, अर्थ है, लेकिन इसकी जब इमेज हम देखेंगे तो यहां दिखाई देने की वजह से हमें ऐसे लगेगा कि ये जो पेड़ है उल्टा है, पानी में हमें उल्टा दिखाई देता, वैसे इमेज दिखेगी। जबकि ये घटना कौन सी है, टीआईआर की। तो मिरेज फॉर्मेशन जो है ये टीआईआर की एक एप्लीकेशन है। एक होती है हमारी साइनिंग ऑफ डायमंड, जो हीरे का चमकना है वो भी टीआईआर का। जो दूसरी फिनोमिना है उसकी वो है साइनिंग ऑफ डायमंड, जो हम देखते हैं कि हीरे का चमकना कौन सी घटना है, वो भी टीआईआर पे। इस एक्चुअल में क्या होता है, हीरा एक पत्थर है, एक स्टोन है,
लेकिन इसके जो सरफेस को हम इस तरीके से काट देते हैं, उनको पॉलिश इस तरीके से कर देते हैं, उनको तराशा इस तरीके से जाता है कि जब लाइट उसमें इंटर करेगी तो वो लाइट का एंगल जो होगा, इंसिडेंट एंगल, उस हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना देगा। तो उससे क्या होगा, उसके जो सरफेस होते हैं उनसे बार बार वो टकराती रहेगी और हमें हीरा चमकता दिखाई देगा। ये हमारा जो फिनोमिना है शाइनिंग ऑफ डायमंड है, ये भी टीआईआर की फिनोमिना। एक ऑप्टिकल फाइबर काफी अच्छा है ये भी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि केबल बनाई जाती है इस तरीके से, ये केबल होती है, जो अंदर का मटेरियल है ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। इसके ऊपर जो सेकंड लेयर हम लगाते हैं इस केबल के ऊपर, वो इससे लेस डेंस मटेरियल की होती है, ये वाली लेयर सेकंड। इस और एक लेयर और ऊपर जो लगाएंगे वो उससे भी डेंस हो क्या हो जाएगी, उससे भी रेयरर हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी फाइबर होती है, एक ऐसी केबल होती है जिसके अंदर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बाहर उससे कम, बाहर उससे कम। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिग्नल भेजते हैं। जो सिग्नल को इंसिडेंट कराते हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कराते हैं, जिससे क्या होगा, टीआईआर होगा इसमें, और टीआईआर होगा तो ये इस तरीके से सिग्नल को आसपास क्रॉस करा देगी। तो ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम आता है। इसमें क्या होता है, ये स्पेशल डिजाइंड पाइप होते हैं हमारे, और ये इनकी एक बेनिफिट ये है कि एक साथ कम से कम 20,000 सिग्नल को एक साथ सेंड कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं विदाउट किसी बफरिंग के। तो बड़े अच्छी चीज है ये भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो भी आपको लिखना है ये किस पे करते हैं, टीआईआर पे। इस तरीके से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम आसानी से सोल्व कर लेंगे इसको। ये था हमारा टीआईआर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, टोटल क्रिटिकल एंगल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या यूज की हमने, कौन कौन से फिनोमेना, मिरेज फॉर्मेशन का था, साइनिंग ऑफ डायमंड है, ऑप्टिकल फाइबर है, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू रेयरर में लाइट जाती है तो ये कैसा अफेक्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये रिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसको का बेनिफिट खुद तो लें, साथ ही साथ अपने दूसरे साथियों को भी इसका बेनिफिट दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।